Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. Finally, we're there. We are now in a position to understand the one of the most important features or set of features that we use in diverse applications of speech processing. And those features are the Mel frequency capsule coefficients. There are many other variations of these, but the common factor to most of them is the capstrum or the cepstrum. So we'll be talking about that today, and we'll be building based on what we have studied up until now, our journey from the time domain processing methods to finally the frequency domain processing methods, in which last time we have completely understood the concept of the discrete Fourier transform, or in general just the Fourier transform, and then the discrete version of that Fourier transform. So just to quickly revise, we looked at the Fourier transform, the mechanism for converting from a time domain signal to a frequency domain signal. This is a really quick and dirty way of saying that. The last time you remember that we looked at it in a lot of detail, how we take a time domain signal and how we basically probe it for different frequencies and the presence of different frequencies, their magnitudes and their phases. And then in speech processing, we're usually more interested in the magnitude information, so we extract the magnitude spectrum. The way we actually do that is using an algorithm known as the fast Fourier transform, in which we did not look into any details of that, but I just recommended that if you are interested, you should be looking into the algorithm yourself. It's an elegant algorithm, but we'll just use that. We understand now what DFT is, so the implementation of the algorithm is we won't be covering that as part of the course. Now today we'll build upon that. So first we're going to really quickly, over just like 2-3 slides, we're going to look at a concept which is known as the harmonic product spectrum, which is a mechanism for extracting pitch from the spectrum of a speech waveform. And then after that, we will just dive into the core concept of the separation of source from the filter using the technique known as cepstrum. So let's begin. All right, so आपको ये याद होगा कि we've already seen a lot of mechanisms for extracting pitch from a speech waveform. और वो उसके अंदर if you remember, we looked at the autocorrelation methods, and there were other methods. Some of them we did not discuss in any detail. So now that we are in the frequency domain, there are certain other techniques. एक तो वो होगी जो खुद हम मेन टेक्निक आज बिल्ड करेंगे, लेकिन कुछ साइड और सिंपल टेक्निक्स भी हैं जो कि पिच एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. इनमें से एक वो है जिसको अभी हम देखने लगे. तो इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने Fourier transform निकाला था, स्पेक्ट्रम निकाला था एक स्पीच वेव फॉर्म का, you have your frequency on the horizontal axis and the magnitude of each of the frequency, the contribution of each of the frequencies on the vertical axis. And again, this is the magnitude graph, not the phase graph. So in this graph, what you see is something like this, if you remember. It's something like this. So यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक चीज़ नज़र आ रही है ये रैपिडली चेंजिंग कंपोनेंट्स, ये जो आपको पीक्स नज़र आ रही हैं ऊपर नीचे जाती हुई, और दूसरा एक इसका आपको एनवलप नज़र आ रहा है जो कि काइंड ऑफ छुपा हुआ है. सो यू कैन क्लियरली सी दैट इन दिस केस वी हैव डन अ नैरो बैंड फिल्टरिंग. सो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि इसेंशली यहाँ पर है, और उसके हार्मोनिक्स रिजॉल्व हो गए. सो यू हैव योर एफ नॉट हियर एंड योर 2 into f naught here and your 3 into f naught here, and so on and so forth. So फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स भी नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ इसके अंदर छुपा हुआ जिसके ऊपर ये राइड कर रहा है वो एनवलप भी नज़र आ रहा है, जो कि आपकी वोकल ट्रैक की रेजोनेंसेस हैं, विच आर योर f1, योर f2 एंड योर f3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फॉर्मेट्स भी नज़र आ रहे हैं. जो टेक्निक अभी हम देखने लगे हैं, इट्स एक्चुअली अ रियली सिंपल आइडिया. द आइडिया इज कि बिकॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटेग्रल मल्टीपल्स के ऊपर आपके हार्मोनिक्स पड़े हुए हैं, कैन वी समहाउ यूज स्केलिंग ऑफ दिस ग्राफ टू एम्पलीफाई द पोजिशन ऑफ दिस फर्स्ट पीक. अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्या है, एम्पलीफाई करनी क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं हम एक पीक डिटेक्शन क्यों नहीं कर लेते कि फर्स्ट पीक ढूंढ लें और उसको हम कह दें कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? द रीज़न इज कि दिस इज जस्ट अ लोकल मिनिमम. यू कैन क्लियरली सी कि इवन इससे अगली पीक इससे ऊपर है, बिकॉज इट्स राइडिंग ऑन द फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट
पोजीशन, कभी ये एफ नॉट की पीक ऊपर होगी, कभी 2 इंटू एफ नॉट की यानी अगला हार्मोनिक ऊपर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो खाली जो है ना पीक डिटेक्शन से ये तो बड़ा क्लीन ग्राफ बना हुआ है, इन रियलिटी व्हाट यू सी इज समथिंग विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इतना आसान नहीं होता कि इसके अंदर से आप जो है वो एक पीक पकड़ लें। हाँ, लेकिन अगर हम इस ग्राफ को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर स्केल डाउन करना शुरू कर दें, यानी इसको अभी जो एफ बनाया हुआ है हमने, इसको एफ ओवर 2 का एक और ग्राफ बना लें, और लेट्स से एफ ओवर 4 का एक और ग्राफ बना लें, एंड सो एफ ओवर 3 का एक ग्राफ बनाएं, एफ ओवर 4 का एक ग्राफ बनाएं, और फिर इन ग्राफ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स निकलेंगे। अब जरा देखते हैं कि वो आउटकम्स क्या हैं। So the idea of the theory of the HPS, the harmonic product spectrum, lies in the fact that the harmonics occur at integral multiples of the fundamental frequency. So in HPS, the spectrum is compressed by scaling it down by integral values, for example, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, and then multiplying them together. So those compressed spectra are multiplied together. As a result, the F naught is reinforced as the harmonics corresponding to it in the compressed spectra. So basically they line up, and it gets reinforced. So any random peaks get suppressed. So finally we get a sharp peak at F naught after some multiplication. So इसको देख लेते हैं. So it happens like this. ये आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी एफ नॉट की पीक है, और ये 2 इंटू एफ नॉट है, ये 3 इंटू एफ नॉट है, ये 4 इंटू एफ नॉट है। ठीक है, इसका सिर्फ शुरू का हिस्सा बनाया हुआ है, जो हमने जो अभी पूरे का पूरा ग्राफ बनाया था ना, ये उसका सिर्फ शुरू का हिस्सा, लेट से ये इतना सिर्फ बना हुआ है। ऑल राइट, आपने क्या किया कि आपने इस पूरी चीज को जो है ना वो कंप्रेस करके 1 over 2 के स्केल के ऊपर ले गए। यू ऑलरेडी हैव डन दिस स्केलिंग मल्टीपल टाइम्स, ये आपको अच्छी तरह से आती है कैसे करते हैं। इससे क्या होगा कि जो ये वाली पीक है, ये इसेंशली इस ग्राफ के अंदर जो ये सो लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, ये पीक यहाँ चली गई, ये वाली पीक यहाँ आ गई, यानी जो ओरिजिनल ग्राफ के अंदर एफ नॉट की पोजीशन थी, वहां पर अब आपका 2 इंटू एफ नॉट आ गया, बिकॉज आप हाफ पर ले गए ना सारी चीज़ों को। और उसके बाद आपने ये 1/3 स्केल के ऊपर ये बना दिया। इसमें क्या हुआ कि ये जो थर्ड वाली पीक है, ये इस वाली जगह पर आ गई, और ये सेकंड वाली पीक यहाँ आ गई, और जो फर्स्ट वाली पीक थी वो यहाँ चली गई। When we multiply these together, and let me just clean stuff up a little bit. When you multiply these graphs together, you will find that there are peaks which line up at this position, जो कि बाकी positions के ऊपर line up नहीं होंगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं और zeros होंगे, तो ये line up नहीं हो रही होंगी। यहाँ पर एक strong लाइन अप बन गया है, जिसकी वजह से ये वाली पीक जो है वो रीइंफोर्स हो जाएगी। तो इसके रीइंफोर्स होने के बाद अब हम कोई पीक पिकिंग एल्गोरिथम यूज करते हुए इसको पकड़ सकते हैं। सो दैट्स अ सिंपल आइडिया, इट डजंट ऑलवेज वर्क, इट्स नॉट अ रियली रोबस्ट एल्गोरिथम, इट्स जस्ट सिंपल एल्गोरिथम। और ये चीज़ आप बहुत देखेंगे स्पीच में भी और एनएलपी के अंदर भी, कि हमेशा हमारा गोल परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं हुआ करता। कभी कभी हमारा गोल ये भी होता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स बना लें जो बहुत क्विक हों। दीज टेक्निक्स आर यूजुअली यूज्ड एज फॉर एग्जांपल लाइक अ प्री फिल्ट्रेशन, अ प्री स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। तो इनसे हम ये कर रहे होते हैं कि अच्छा क्विकली एक रफ वैल्यू तो निकालो ना यहाँ पर पिच की, और उसके ऊपर फलां फैसला करो, एंड देन लेटर ऑन इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो वो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम अभी हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम। तो कोरिलेशन की निस्बत आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यानी कितना कम एक्सपेंसिव एल्गोरिथम है ये। तो computationally speaking, तो लिहाजा this is the algorithm that we did not talk about last time, तो ये बस मैंने कहा quickly आपके सामने आ जाए। Now let's begin the actual discussion for today. The main discussion for today is how can we separate the source, the vocal folds or the glottal source, and the filter. So filter और source को हमने अलग करना है। ये हमने last time भी बात की थी कि ये हमारा गोल होगा एक lecture के अंदर। Today is the lecture where we're going to look at how can we separate the source from the filter. So now we have a way of finding the F naught, ये भी हम देख कर आए हैं. However, it's not always easy to do the HPS, as the F naught and the harmonics ride on the formant peaks. That makes the extraction of the formants difficult matter as well. There are several techniques to separate the spectrum of the excitation source, the glottal waveform, and the vocal tract filter response. However, दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट। ये खाली ये कहना कि हम खाली सोर्स को पकड़ना चाह रहे थे, ये अंडरस्टेटमेंट होगी। दिस टेक्निक जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, इट बेसिकली कट्स एट द वेरी रूट ऑफ द प्रॉब्लम of separating the characteristics of the speaker from the characteristics of what was said. So separating out who said it from what was said, ये दो चीज़ों के अंदर अलग करना, ये हमारा गोल है। यहाँ पर अब जो मैं सबसे पहले ना, बिफोर इवन गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द टेक्निक, मैं आपके सामने एक दो चीज़ें रखना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कोई टाइम डोमेन सिग्नल है, और ये मेरे पास इसका स्पेक्ट्रम है।
स्पेक्ट्रम के अंदर हमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, सोर्स भी नज़र आ रहा है। सोर्स कहाँ नज़र आ रहा है स्पेक्ट्रम के अंदर? सोर्स हमें ये रैपिडली मूविंग चीज़ों में नज़र आ रहा है। सो ये जो रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स हैं ये सोर्स से आ रहे हैं, और ये जो स्लोली मूविंग कंपोनेंट्स हैं ये फिल्टर से आ रहे हैं। इतना तो हमें पता है। तो हम क्यों ना इस टाइम डोमेन वेव फॉर्म को पकड़ें और इसको फिल्टर कर लें। फिल्ट्रेशन क्यों नहीं चल सकती? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइम डोमेन वेव फॉर्म के अंदर लेट्स से 60 हर्ट्ज का एक नॉइज़ ऐड हुआ हुआ होता, जैसे कि हम कहते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आ जाता है 60 हर्ट्ज का एक इसके अंदर नॉइज़ ऐड हो जाता है। अगर वो 60 हर्ट्ज का इसके अंदर नॉइज़ या यानी 60 हर्ट्ज का इसके अंदर एक वेव फॉर्म ऐड हुई भी होती, उसको निकालना बड़ा आसान था। हम क्या करते, हम इसको स्पेक्ट्रम में लेकर जाते, स्पेक्ट्रम में जाकर 60 हर्ट्ज के अराउंड जो पीक आ रही होती उसको कट कर देते और बाकी सारे का सारा स्पेक्ट्रम पकड़ लेते, यानी उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते, बाकी सारा स्पेक्ट्रम पकड़ते, उसको वापस टाइम डोमेन के अंदर ले आते एंड वी आर डन। हमने वो 60 हर्ट्ज की नॉइज़ बीच में से निकाल दी। वो काम अब हम क्यों नहीं कर सकते? The problem is कि 60 हर्ट्ज की नॉइज ऐड हुई हुई थी। It was a simple superposition of two waveforms. ऐड हुई हुई चीज को निकालना आसान था। ये दोनों चीजें जो आपकी एक्साइटेशन का जो आपका सोर्स है और जो आपका फिल्टर है ये ऐड नहीं हुए में, ये कन्वॉल्व हुए में, ये दोनों आपस में कन्वॉल्व हुए में। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि यू टेक इट टू फ्रीक्वेंसी डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाकर किसी एक बैंड को जो है वो बीच में से निकाल दो। यहाँ पर मैं कोई बैंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जिसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं बाहर निकाल दूं और कहूँ इसको जीरो कर दें, अब जो बाकी बच गया है वो सारे के सारा फिल्टर का रिस्पॉन्स है, या जो बाकी बच गया है वो सारे के सारा एक्साइटेशन सोर्स है। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस कि अ सिंपल फिल्टर which separates out a particular range of frequencies in the frequency graph will not work. So we need something better, a more sophisticated technique to accomplish this. अच्छा, वो टेक्निक है बहुत इंजीनियस सी, लेकिन वो है इतनी सादी भी कि एट दिस पॉइंट आपके जहन में वो खुद से आ रही होनी चाहिए। ये टाइम डोमेन वेवफॉर्म को घूरें, इस फ्रीक्वेंसी डोमेन वेवफॉर्म को देखें, और मैं चाहूँगा कि आप खुद से ज़रा थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके सोचें कि अगर ये आपके ज़िम्मे काम लगा हुआ होता कि आपने इस सोर्स को इस फिल्टर से अलग करना होता, तो क्या कोई टेक्निक जहन में आती है? अगर मैं आपको हिंट दूं तो वो टेक्निक यहाँ कहीं छुपी हुई है, मेरी फ्रीक्वेंसी डोमेन वेवफॉर्म में वो टेक्निक कहीं छुपी हुई है। तो कोशिश करें कि पहले खुद से सोच लें उस पर, और उसके बाद आगे बढ़ें और हमारे साथ अपना सफ़र कंटिन्यू करें। अच्छा जनाब, सो लेट्स मूव ऑन। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस दिस फाइनल आउटकम जो कि हमारे पास दो जगहों से आ रही है, ये सब का सब आपको पहले से मालूम है, आपने बड़ी अच्छी तरह सीखा हुआ है कि ये हमारा सोर्स है जो कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। इन रियलिटी दिस इज बेसिकली दिस ना, ये आपका सोर्स है और ये आपका फिल्टर था। इन दोनों को आपस में आपने, अब यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाए हुए हैं। इफ़ यू रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी डोमेन के टाइम डोमेन की कॉन्वोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन। सो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, योर source spectrum and your filter spectrum, and as a result you're getting this spectrum। ये वो चीज़ है जो मुंह से बाहर निकल रही है, जिसके अंदर जो है वो हमारा -6 डेसिबल्स पर ऑक्टेव का जो है वो स्पेक्ट्रल टिल्ट है। ठीक है, रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ को देखें तो हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। ये बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि दिस इज नॉट टाइम डोमेन, दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। हाउएवर इस फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ के अंदर देयर इज अ रैपिडली चेंजिंग कंपोनेंट एंड देयर इज अ स्लोली चेंजिंग कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स हैं इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में। नॉर्मली हम ऐसी बातें करते हैं टाइम डोमेन के बारे में, जब हमारे पास टाइम डोमेन ग्राफ होता है ना, तो हम उसमें कह रहे होते हैं कि जी देखें ये एक स्लोली चेंजिंग कंपोनेंट है जो इसका पीरियड डिफाइन कर रहा है, और लेट्स से ये इसके जो है ना ये फास्ट मूविंग कंपोनेंट्स है। ये टाइम डोमेन के बारे में ऐसी बातें होती हैं। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ को देखकर कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ के अंदर एक रैपिडली मूविंग कंपोनेंट है और एक स्लोली मूविंग कंपोनेंट है, और ये दोनों कंपोनेंट्स नाइसली कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं एक फिल्टर से और एक सोर्स से। एक सोर्स से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है विच इज दिस, और एक फिल्टर से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है विच इज दिस, और वो दोनों यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या करें? यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा, बड़ा यूनिक सा आइडिया जहन में आता है। क्यों ना हम इस फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ को पकड़ के फिर से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। अच्छा, नाउ सिंपली सेइंग दैट वुड मीन कि हम वापस टाइम डोमेन में चले जाएंगे, तो शायद कोई इतना फायदा ना हो। लेकिन इस बात में वजन जरूर है कि इफ वी जस्ट टेक द Fourier transform again of this graph,
hopefully somehow there should be some technique which may resolve the rapidly moving components as high frequency components and the slowly moving components as the low frequency components. And then if we're interested just in the low frequency components, that is the formants, we remove the high frequency components, just take the low frequency components and then again take a Fourier transform, come back into this domain और हमारे पास जो है वो hopefully ये बच गया होगा। अगर ये वाली बात से आपके दिमाग बिल्कुल एक किस्म की लस्सी की किस्म की चीज बन गया है तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। That's expected. This is the first time I've said it. अगर आपको समझ में आ गया, here's a random fluke. In a, I don't know, 1 in 100 chance कि आपको ये समझ में आ गई ये बात, तो congratulations. You have been with us from the first day of the semester. आपको पहली दफा में ये बात समझ में आ गई तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो इतनी परेशानी की बात नहीं। That's the usual expected response. अगर आप मेरे सामने क्लास में बैठे होते तो इस मौके के ऊपर आप अपने इस तरह करके शक्ल कर रहे होते और आप कह रहे होते यार ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप। तो that's expected. तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है। अभी इसको हमने आज के लेक्चर में मैंने शायद 3 दफ़ा इस पूरी बात को दोबारा पूरी तरह से करना है, तो इसलिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तीसरी दफ़ा के बाद ना समझ आई तब परेशान होने की ज़रूरत है, बट एनी हाउ तब की भी परेशानी उसी वक्त कर लेंगे, जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जनाब, so a straightforward solution here seems to be to filter out the two components using a low pass and a high pass filter, जो इसके अंदर हम कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोडक्ट हैं और टाइम डोमेन के अंदर कन्वॉल्व हुई हैं। सो कन्वॉल्व हुए हुए कंपोनेंट्स को सादा हाई पास लो पास फिल्टर यूज़ करके या बैंड पास फिल्टर यूज़ करके अलग नहीं किया जा सकता। So what we do, the main motivation of the what we call the cepstrum is this observation कि okay we have अब यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है xn is the time domain signal and f of xn, ये जो fancy f बना हुआ है, this is the Fourier transform. So this is the Fourier transform of this time domain signal, and in this signal you see everything. You see the quick sharp peaks. असल में जब ये सिग्नल हमें मिलता है ना तो ये इस शक्ल का होता है। So you see the sharp peaks and you also see the filter envelope which is slowly moving. Now the first problem, और अब मेरे साथ पूरी मुझे complete तवज्जो चाहिए और मैं साथ साथ यहाँ साइड से पढ़ भी रहा हूँ। So consider the magnitude spectrum. ये याद रहे कि ये खाली magnitude spectrum है, ये वाली चीज़ ये है। So consider the magnitude spectrum of the periodic signal. By the way, before I go any further, ये याद रखिएगा, this is Texas A&M की ये slides हैं जहाँ से मैं ये आपको, this is an introduction to speech processing course जो कि ये प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ाते हैं और ये इनकी slides हैं। तो I am basically using the material from those slides. These are available online और मैं इन slides को as it is some of these slides को use कर रहा हूँ because these are amazing slides. These are really good. और यहाँ से आगे के जो lectures हैं जो हम speech recognition वगैरह में जाएंगे, there will be multiple places where I'll be reusing their slides. So thank you, a big thank you to them for creating those slides and for putting them online, and we'll be using them in some of our lectures. So a citation and a credit to where the credit belongs. अब वापस आते हैं अपने मौजू के ऊपर. So you see this magnitude spectrum. The spectra contains harmonics at evenly spaced intervals जो हम देख रहे हैं, whose magnitude decreases quite quickly as frequency increases. तो आप ये magnitude का decrease भी देख रहे हैं कि कितना तेजी के साथ जो है ना यहाँ पर अभी कितने हाई हैं और कहाँ कितनी तेजी से ये नीचे चले गए। अब आपको याद होगा हमने ये वाली चीज़ इसी सेमेस्टर में की थी that the logarithms could be used as a mechanism जहां कहीं भी हमारे highest point और lowest point में बहुत बड़ा difference हो। Remember all the discussion around decibels and the discussion around Richter scale, वो सब बातें किसी वजह से आपको motivate की गई थी। तो जब scale में बहुत बड़े differences होते हैं तो we usually compress the differences and we make things a little bit linear, वो क्योंकि उसमें exponential differences होते हैं, हम उन exponential को कोशिश करते हैं कि linear differences में convert कर दें using logarithms. So all we're doing here is that we're taking a log of the magnitude spectrum of the signal. log ले रहे हैं, ठीक है, ये याद रहे। और log लेने की रीज़न समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पर हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें बिल्कुल दबी हुई हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुई हुई हैं। तो हम उसको जब लॉग लेते हैं तो वो इस शक्ल का बन जाता है जो हम शक्ल आपको आमतौर पर दिखा रहे होते हैं ना, शुरू से जो दिखाते आए हैं और जो प्लॉट भी करते आए हैं, वो स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो लॉग स्पेक्ट्रम होता है। ये आपको आज हमने बताया है जाके।
तो बट दैट्स द ट्रुथ। ये जितनी दफ़ा आपको ये स्पेक्ट्रम दिखाया जाता था और ये प्लॉट्स दिखाए जाते थे स्पेक्ट्रोग्राम्स के, यूजुअली दोज प्लॉट्स कॉरेस्पॉन्डेड टू जस्ट द लॉगरिदमिक, द लॉग ऑफ द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, नॉट द स्पेक्ट्रम इटसेल्फ, बिकॉज स्पेक्ट्रम इटसेल्फ के अंदर ये चीज़ बहुत डार्क होती स्पेक्ट्रोग्राम में और ये बिल्कुल गायब हुई भी वाइट होती। तो ये आपको लॉग प्लॉट नज़र आ रहा था। तो आज से आपको ये भी समझ आ गया कि लॉग प्लॉट क्यों था। अच्छा जनाब, so यहाँ तक की रीजनिंग में आप हमारे साथ हैं। So by calculating the log spectrum, however, we can compress the dynamic range and reduce the amplitude difference in the harmonics. अब जब हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है और हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली है कि यहाँ पर हमारे कुछ रैपिडली वेरिंग कंपोनेंट्स हैं जो ये नज़र आ रहे हैं और कुछ ये जो लाइन जा रही है slowly varying components हैं. So how about we take an inverse Fourier transform of the log of the Fourier transform of the original signal. यानी इस वाली चीज़ का आपने दोबारा एक inverse Fourier transform ले लिया। Usually अगर आप इस चीज़ का inverse Fourier transform लेते तो इससे xn वापस बाहर आ जाता। अब ये मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आप इसका inverse Fourier transform ले लेते तो इससे इसका xn वापस आ जाता। हम टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में गए थे, फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम डोमेन में आ जाते। हाउएवर ये जो आपने लॉग कर लिया ना बीच में, एक ये वाली बात, और दूसरा जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वापस जाते हुए, इंटरप्रिटेशन ये है कि अब हम यहाँ से इंटरप्रेट ये कर रहे हैं कि हम हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं। स्पेशली द लॉग एंड सेकेंडली द इंटरप्रिटेशन वुड मेक अस रिटर्न टू दिस this new domain which we call the cepstral domain. And we call this thing जो हमारे सामने आई है, we call this thing not the time domain. We say that we have gone from spectral domain to cepstral domain. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि log का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर आप टाइम डोमेन में वापस नहीं आए हैं, आप एक और डोमेन में वापस आ गए। अच्छा, बिफोर कोई इधर उधर की और मुश्किल बातें करें, एक आसान सी बात हो जाए। आपको इस ग्राफ के अंदर ये रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये हाई फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए फ्रीक्वेंसी ग्राफ ना समझूं, थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ नहीं भाई ये तो कोई टाइम डोमेन का ग्राफ है, तो ये वाली चीज़ें हाई फ्रीक्वेंसीज हैं और ये वाली चीज़ लो फ्रीक्वेंसी है। इसके 3 साइकिल आए खाली, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो चीज़ जो तेज़ मूव कर रही है, इसका आप देख सकते हैं, यू हैव लाइक 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4, 5, 6, 7, ढेरों इसके हैं साइकिल्स। अगर मैं इस पूरी चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी चीज़ बनेगी, बन गई। और ये स्लो वाली चीज़ कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसी चीज़ बनेगी, बन गई। कहानी ख़त्म। अब ज़रा इस बात को बेशक रोक के गौर कर लें। हमने एक टाइम डोमेन सिग्नल लिया xn, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। फोरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि ये अब फ्रीक्वेंसी डोमेन नहीं है, ये कोई ग्राफ है, इसका कुछ भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन इस ग्राफ में कुछ चीज़ें तेज़ी से मूव कर रही हैं, कुछ चीज़ें स्लोली मूव कर रही हैं, इनको अलग करना है। मैंने दोबारा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया। इस केस में हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं ना कहें। आपके इन्वर्स और फोरियर के अंदर मैंने इसीलिए आपको पूरी तफसील से वो पूरी लेक्चर वीडियोस दिखाई थी, ताकि आपको ये फ़र्क पता हो कि वो जो एक बड़ा डिफरेंस है ना इन्वर्स में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में, कि एक वो एक्सपोनेंट के अंदर माइनस आ जाता है या प्लस आ जाता है, उसमें सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है कि सर्कल यूँ घूम रहा है या सर्कल यूँ घूम रहा है। और एक आपके पास जो है वो एवरेज लेने के लिए n आ जाता है, 1/n आता है या नहीं आता, उससे खाली स्केल का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ इतनी अच्छी तरह करवाई थी, आई होप कि आपको समझ में आई थी कि जब भी कभी मैं चाहूँ मैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकूँ, एंड यू नो द एग्जैक्ट डिफरेंस कि अच्छा यूँ घूमता सर्कल या यूँ घूमता सर्कल, नो बिग डील। और एवरेज लेना है या नहीं लेना है, यानी खाली स्केल ऊपर करना है या नहीं करना, नो बिग डील। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहे। तो इसका दोबारा से जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है तो उस फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद ये हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स यानी द ग्लॉटल सोर्स और स्लो कॉम्पोनेंट्स यानी कि वोकल ट्रैक्ट फिल्टर इस ग्राफ में अलग होकर आ गए। सो अब मेरे में ये कैपेबिलिटी आ गई है कि मैं बड़े आराम से इस ग्राफ को मल्टीप्लाई करूं एक और चीज से, एक विंडो कर दूं मैं इसको, लेट्स से ये वाली विंडो कर दूं मैं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सबका सब खत्म हो गया, ये बच गया। क्या बच गया? फिल्टर बच गया। अगर मैं इस ग्राफ को, इस नए ग्राफ को जो कि इस शक्ल का होगा और यहाँ से आगे 0 होगा, इसको पकड़ के वापस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, इस ग्राफ का वापस मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो क्या चीज़ बनेगी? जब मैं वापस आऊँगा ना तो इस ग्राफ के अंदर से ये जो फॉर्मेट्स थे ना, बस ये बच गए होंगे, और ये जो तेज़ मूविंग कंपोनेंट्स थे ना, ये ख़त्म हो गए होंगे। और अगर मैं इसका उलट करूँ, अगर मैं इसका उलट करूँ
लेट मी चेंज द विंडो, और मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पर इस विंडो से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर इस सब कुछ का, और ये क्या बनेगा, इस तरह की चीज, और मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो इसके नतीजे में जो चीज मेरे पास बाहर आएगी, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा भी, जो चीज बाहर आएगी वो आएगी इस तरह की, इस किस्म की चीज, जिसके अंदर क्लियरली मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक 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 पड़े होंगे, और क्या निकल गया होगा, ये एनवलप बीच में से निकल गया होगा. So this is now the technique for basically separating out your source, the vocal source, from the vocal tract filter. So अब इस बात को इनके अल्फाज में दोहरा देते हैं. Imagine we are told that the log spectra was a waveform. In this case, we would simply describe it as a quasi-periodic with some form of amplitude modulation. Amplitude modulation का क्या मतलब है कि इसके जो amplitudes हैं ये राइड कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, यानी जो आपकी rapidly varying components हैं वो इस slowly varying के ऊपर राइड कर रहे हैं. To separate both components, we could just employ the DFT. We would then expect the DFT to show a large spike around the period, जो कि नज़र आ रही है, of the signal, some low frequency components due to the amplitude modulation. A simple filter would then allow us to separate both of these components, जैसा आपने अभी अपनी आंखों के सामने होते देखा. पिछली स्लाइड में अगर आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे, तो इस स्लाइड में होपफुली अब आप थोड़े से ऐसे हुए होंगे. तो आपकी हैरानी, आपकी परेशानी, आपका गम और गुस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा होगा, और कहीं दूर जो है ना वो एक जैसे अंधेरे के अंदर एक हल्की सी बत्ती जलती है, वो लाइट जलती हुई फील हो रही होगी कि ये कुछ समझ आना शुरू हो गया है. सो नाउ आई थिंक लाइक इन माई ऑडियंस यूजुअली कोई 40 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट तक पहुंच कर कहानी समझ गए होते हैं, और वो उन्हें ये भी लग रहा होता है कि यार ये बड़ी मज़ेदार फनकारी की है, ये जो काम किया है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट को पकड़ के क्या कर दिया. एंड देन अभी भी तो 5 ऐसे थे जो शुरू में समझ गए थे, 40 और समझ गए, 55 स्टूडेंट अभी भी ऐसे होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि यार इट्स एट द एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, समझ तो आ रही है लेकिन अभी कोई बात पूरी तरह बनी नहीं है. उनके लिए बाकी आज का पूरा लेक्चर जो है ना, अभी 27 मिनट गुजरे हैं, तो जो बाकी लेक्चर है 1 घंटे का, वो उसमें मैं अभी यही एक्सप्लेन करूंगा, और चंद नए इंग्रेडिएंट्स इसमें चीनी वगैरह शामिल करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता. ऑल राइट जी. So this is essentially what you have done. This is what you get. So you have your spectrum. You have your, this is the spectrum. ये आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था, और ये लॉग स्पेक्ट्रम है. सो हम x समझ लेते हैं सिग्नल को, ये सिग्नल का स्पेक्ट्रम है. इसमें आपको ये रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ये स्लोली मूविंग कंपोनेंट्स भी नजर आ रहे हैं, यानी आपको फॉर्मेट्स भी नजर आ रहे हैं. इसमें मैं ज़रा सेकंड वाला कंपोनेंट ज़रा नीट बना दूं ताकि कोई कंफ्यूज ही ना होता फिर. ऑल राइट, सो फॉर्मेट्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपको वोकल सोर्स भी नज़र आ रहा है. आपने अलग क्या करना है, स्पेक्ट्रल एनवेलप अलग करना है, जिसमें मेरे पास F1 अलग हो जाए, F2 नज़र आ रहा हो, F3 नज़र आ रहा हो, उसके ऊपर से ये तेज़ मूविंग चीज़ ख़त्म हो जाए. और दूसरी चीज़ मैं स्पेक्ट्रल डिटेल्स यानी जो ग्लॉटल वेव सोर्स है वो अलग कर लूँ, यानी मेरे पास ये F0 है इसमें पड़ा हुआ, और ये मेरे पास 2 इंटू F0 है, और यहाँ कहीं इसमें 3 इंटू F0 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सोर्स होगा. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लॉग स्पेक्ट्रम से लॉग ऑफ द वोकल ट्रैक फिल्टर एंड लॉग ऑफ द एक्साइटेशन सोर्स अलग करना चाहता हूँ. बाय द वे अगेन ये एक और सोर्स है जो मैं यूज़ करूँगा, जो कि 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं. इनकी स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, अगेन अमेजिंग स्लाइड्स. तो इसके इनके कुछ विजुअल्स हैं जो मैं आगे जाकर यूज़ करूँगा, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है. ठीक है, अगेन हम अपने उसमें अब मेरे ख्याल में 55 में से जो है ना कोई 10 12 15 और होंगे जिन्हें चीज़ कुछ बेहतर समझ आ गई. लेट्स मूव ऑन. अच्छा जनाब, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि हमने किया क्या है. सो द सेप्स्ट्रम is defined as the inverse DFT of the log magnitude of the DFT of a signal. So you take your signal, you take a spectrum of it, you take a log of the spectrum, ताकि वो थोड़ा सा सीधा हो जाए, वो जो ये ऐसे करके जो जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा वो ऐसे करके आना शुरू हो जाए. You take a log of the magnitude spectrum, and then you take the inverse discrete Fourier transform of this. ठीक है, so where obviously f जो है वो DFT है और f inverse जो है वो IDFT है. अगर ये काम हम विंडोड में करें, अब जाहिर है हमने तो विंडोड सिग्नल के साथ करना है ना, पूरा सिग्नल तो टाइम वेरिंग सिग्नल है, उसके ऊपर तो ये करने की सेंस नहीं बनती. तो विंडोड सिग्नल के ऊपर करें तो दिस इज एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग. दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल xn. ये आपने इसको सर्कल्स के साथ, घूमते हुए सर्कल्स के साथ प्रोब किया है,
और ये आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया। ये देखो, अब माय स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ है जो जो अंडरस्टैंडिंग मुझे वाकई आप लोगों से चाहिए, जिसके लिए मैंने पिछला पूरा लेक्चर जो है ना वो खाली फोरियर ट्रांसफॉर्म पे लगाया था। आई वांट यू टू बेसिकली, जब ये नज़र आए तो आपको वो घूमते हुए सर्कल्स नज़र आ जाए। अगर ये हो रहा है तो मैं अपना मकसद पा गया हूँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो आप पिछला लेक्चर नहीं सही से सुन के आए। बट एनी हाउ, ये जनाब फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और ये विंडोड फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओवर अ विंडो ऑफ साइज n। ठीक है, और उसके बाद ये हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया है, सो ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बन गया है। ठीक है, इसने फेज अलग कर दिया, फेज में हम इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि यहाँ से ये ई है ना, दो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स है तो फेज भी आ रहा था और आपके पास इसका जो है वो रियल पार्ट भी आ रहा था। तो हमने इसका खाली मैग्नीट्यूड अलग कर लिया। So there was a real and imaginary part, and we just took the magnitude out of that. And then उस magnitude spectrum को हमने जब log से गुजारा तो इसको हमने थोड़ा सा सीधा कर दिया, और उसके बाद हमने इस पूरी चीज़ का inverse Fourier transform ले लिया। और ये मैं वो कह रहा था आपसे, ये देखें ना भाई, ये इतना ही फ़र्क है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? It doesn't matter for us. For all practical purposes, it's like taking the DFT again. So you do this, so you take the signal, you do the DFT, you get the spectrum, you take a log, you get the log spectrum, you take the IDFT, and you get this new thing. अगर log ना लिया होता और एब्सोल्यूट ना किया होता, मेरे साथ रहना, इस बात को समझ लें, अगर log ना लिया होता और खाली उसके रियल पार्ट यानी खाली उसके मैग्नीट्यूड को ना देखा होता, उसकी फेज भी इंफॉर्मेशन रखी होती। देखे ना, आपने स्पेक्ट्रम लिया, स्पेक्ट्रम का फेज उठा के फेंक दिया, और उसके बाद आपने उसका लॉग ले लिया। अब आप ये एक्चुअल स्पेक्ट्रम नहीं रह गया। अगर एक्चुअल स्पेक्ट्रम का दोबारा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते तो आप टाइम डोमेन में आ जाते, लेकिन आपने स्पेक्ट्रम लिया, उसका फेज निकाल दिया, उसका लॉग ले लिया, अब आपने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। अब ये बात एम्फेसाइज करना ज़रूरी थी इसके बनाने वालों के लिए कि आप टाइम डोमेन में वापस नहीं आए हैं, आप एक नई डोमेन में वापस आए हैं। देखिए, अगर आप एक्स एन को लेते और इसका DFT निकालते, और DFT निकाल के आपके पास XK आता, और आप इसका IDFT निकाल लेते, तो आप वापस XN तक पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि आपने बीच में इसका मैग्नीट्यूड भी लिया और आपने इसका लॉग भी लिया, इन दो चीज़ों की वजह से जहां आप वापस आए हैं ये XN नहीं है। दिस इज नॉट XN, दिस इज नॉट XN, दिस इज अ न्यू डोमेन, एंड दिस इज द डोमेन विच इज टर्म्ड एज, नाम रखने वालों ने इसका नाम रखा सेप्स्ट्रम। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सेप्स्ट्रम का लफ्ज कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आई होप यूर विद मी। ऑलराइट, एक और मजेदार वर्ड, लिफ्टरिंग इन द सेप्स्ट्रल डोमेन। अभी चंद मिनट के बाद आपकी सारी टर्म्स का मजा आने लगेगा। ये वो पॉइंट होता है, एंड यू कैन टेल कि आई एम मिसिंग एक्चुअल क्लासेस। वी रियली एंजॉय दीज थिंग्स इन एक्चुअल क्लासेस। वो जब आप सामने 80 लोग बैठे होते हैं ना, बाय द वे माय स्पीच क्लास इज यूजुअली अराउंड द सेम नंबर। दिस इज द मैजिक नंबर दैट माय क्लास साइज wherever I teach it is around 70 to 80. So probably in the world of computer science, this is how much you get in terms of interest in speech processing. तो वो जो 70-80 होते हैं ना, वो बड़े हंसने लगते हैं इस बात पे कि ये लिफ्टरिंग क्या है, ये लिफ्टरिंग फिल्टरिंग से बना है। तो ये क्या मतलब है इसका मतलब सिंपली ये है कि ये आपके पास सेप्स्ट्रम है, ठीक है, यानी वो सेप्स्ट्रल डोमेन के अंदर ये आपके जाहिर है वो चीज़ है जो फिल्टर का रिस्पॉन्स है, और यहाँ कहीं आपका सोर्स है। तो आपने इसको जब ये फिल्टर कर लिया, ये लाल वाली विंडो के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये लाल वाली चीज़ मिलेगी, और ये जो नीली वाली चीज़ है ये निकल गई होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कि हम इसे, मैंने आपको फिल्टर कहा था ना, इसको हम असल में सेप्स्ट्रल डोमेन में जो भी ऑपरेशन करते हैं ना, उसको हम टाइम डोमेन के ऑपरेशन से ज़रा अलग करके बयान करते हैं, तो इसलिए हम फिल्टरिंग को लिफ्टरिंग कहते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो ये टर्मिनोलॉजी इंटरेस्टिंग आ कहाँ से रही है? सो द क्रूशियल ऑब्जर्वेशन हियर व्हिच लेड टू द सेप्स्ट्रम टर्मिनोलॉजी इज दैट द लॉग स्पेक्ट्रम कैन बी ट्रीटेड एज अ वेवफॉर्म and subjected to further Fourier analysis. So the independent variable of the cepstrum is nominally time, है ना, टाइम ही होना चाहिए since it is the IDFT of the log spectrum, but is interpreted as a frequency since we are treating the log spectrum as a waveform. दो differences आपके सामने आ गए ना, एक difference ये आ गया कि आपने इसका log ले लिया था, दूसरा difference ये आ गया कि आपने खाली इसके magnitude को लिया था। So log और magnitude के बाद जिस वक्त आपने दोबारा DFT किया है, तो आप जिस डोमेन में आए हैं उसे अब आप टाइम डोमेन नहीं कहते, उसे आप कहते हैं कि ये क्यूफ्रेंसी डोमेन है। सो यहाँ पर ना अब इन्होंने सिर्फ चीज़ों को अलग करने के लिए कि कभी कंफ्यूज ना होने लगे कि ये टाइम डोमेन है, इन्होंने चीज़ों के नाम बदल दिए कि जो चीज़ सेप्स्ट्रम को लेने के बाद आती है उसे वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं क्यूफ्रेंसी। सो ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और वहाँ पर हम स्पेक्ट्रम को कहते हैं सेप्स्ट्रम।
So basically to emphasize this interchanging of domains, हीरी बॉगर्ट एंड टुके 1960 में इन्होंने ये टर्म कॉइन की सेप्स्ट्रम by swapping the order of the letters of the word spectrum. So CEPS, सेप्स्ट्रम या कैप्स्ट्रम, ठीक है, इस तरह बन गया कैप्स्ट्रम. Likewise, the name of the independent variable of the substrum is known as a Q-frequency. So rather than frequency, FREQ, इसको इन्होंने Q-frequency कर दिया, और ये फ्रीक्वेंसी को यहाँ Q-frequency कहते हैं, फिल्टरिंग को यहाँ लिफ्टरिंग कहते हैं. सो FILTER को LIFTER लिफ्टरिंग कहते हैं. क्यों ये सब कुछ किया? ये खाली मजाक नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है. मैंने कहा खाली मजाक नहीं है, इसका मतलब पार्शली मजाक है. इट्स पार्शली फन, बट इट हैज़ अ रीज़न, एंड द रीज़न इज़ कि जब भी हम सेप्स्ट्रल डोमेन में बार बार अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि हम टाइम डोमेन में नहीं हैं. हम बेशक DFT और इन्वर्स DFT लेके आए हैं, लेकिन हम वापस नहीं आए हैं, हम कहीं और चले गए. और क्यों वापस नहीं आए हैं? क्योंकि if we take the DFT of a signal and then take the inverse DFT of that, we of course get back to the original signal, assuming that the signal is stationary, meaning it's a time invariant signal. The sepstral calculation is different in two different ways. Firstly, we only use the magnitude information and throw away the phase. Secondly, the IDFT of the log magnitude, which is already very different since the log operation emphasizes the periodicity of the harmonics. So IDFT हमने original का नहीं लिया, log magnitude का लिया. इस दो चीज़ों की वजह से अब हम एक different domain में आ गए. So we have reached a different realm, and this new realm is known as the sepstral domain. So the sepstrum is useful because it separates the source and the filter. If you're interested in the glottal excitation, we keep the high coefficients. If you're interested in the vocal tract, we keep the lower coefficients. ठीक है, coefficients क्या मतलब? जो weights जो हमें मिल रहे हैं इस नए ग्राफ के अंदर. Truncating the septrum at different Q-frequency values allows us to preserve different amounts of the spectral detail. तो अब हमारे सामने ये पूरी चीज़ hopefully जहन में clear हो जानी चाहिए. अब हम इसको थोड़ा सा इसकी और तफसील में जाना शुरू करते हैं. So होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इज अ टर्म जो कि आप सुनेंगे और पढ़ेंगे जब आप सेप्स्ट्रम के बारे में पढ़ रहे होंगे. सो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इज अ जनरलाइज्ड टेक्निक. इट इन्वॉल्व्स अ नॉन लीनियर मैपिंग टू अ डिफरेंट डोमेन, where linear filters are applied, followed by mapping back to the original domain. So जो हमारा ये sepstral analysis है, this is basically a specialized case of homomorphic filtering. So we treat the frequency signal as a normal waveform and use logarithms to convert its components into summation on the logarithmic scale. So आपकी excitation है और आपका filter है, आपने इसको convert कर दिया है log E plus log F के अंदर. ये दोनों चीज़ें multiply हुई हुई थी frequency domain के अंदर. अब frequency domain के अंदर जब आपने log किया तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो बजाय मल्टीप्लिकेशन के ये समेशन में कन्वर्ट हो गई. इट्स नाउ अ सम ऑफ दीज टू थिंग्स, एंड सम्स को फिल्टर करना मुमकिन होता है. ठीक है, सो वेयर ई इज द एक्साइटेशन एंड एफ इज द फिल्टर रिस्पॉन्स. तो इस सम को अगर मैं दोबारा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मैं वहां जाकर इनको अलग कर सकता हूँ. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन. ठीक है, अब जरा थोड़ी देर के लिए वापस ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लें. टाइम डोमेन में मेरे सिग्नल में 60 हर्ट्ज की नॉइज ऐड हो गई. दो चीज़ें ऐड हुई. मेरा सिग्नल, उसमें ऐड हुई नॉइज, या 60 हर्ट्ज का एक सिग्नल ऐड हुआ. मैं उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गया. वहां जाकर वो दोनों मेरे ग्राफ पे अलग अलग आ गए. 60 हर्ट्ज अलग आ गया और मेरा आवाज़ अलग आ गई. होपफुली अगर 60 हर्ट्ज की जोन में मैं बोल नहीं रहा था तो मैंने खाली एक विंडो लगाई, एक बैंड पास फिल्टर लगाया, या लेट से दो बैंड्स पास करवाने थे तो मैंने खाली एक बैंड सप्रेशन बीच में की और 60 हर्ट्ज को मैंने बीच में से रिमूव कर दिया. वापस आया अपने ओरिजिनल डोमेन के अंदर, मेरे सिग्नल के अंदर से वो नॉइज निकल चुकी थी. वही काम अब यहाँ पर हो रहा है. आपके पास एक्साइटेशन और फिल्टर, यानी सोर्स और फिल्टर, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हुए पड़े हुए थे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, स्पेक्ट्रम में. आपने उसका लॉग ले लिया, वो दोनों ऐड हो गए, वो एडिशन बन गए, बजाय मल्टीप्लिकेशन के नाउ देयर एडिशन. अब ये दो ऐड हुई हुई चीज़ों का मैंने स्पेक्ट्रम लिया, मैंने इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया. इसका जब स्पेक्ट्रम आया तो ऐड हुई हुई चीज़ों के स्पेक्ट्रम में चीज़ें अलग की जा सकती हैं. हमने उनको अलग किया और अलग करने के बाद जिस हिस्से को बीच में से काट के दूसरा वापस ले आए, जो और वापस DFT लेकर वापस आ गए, जब वापस आएंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, वो वाला हिस्सा जिसमें हम इंटरेस्टेड थे. सो दिस इज योर स्पेक्ट्रम. लॉग लिया, लॉग लेने के बाद आपके पास लॉग ऑफ सोर्स एंड लॉग ऑफ एक्साइटेशन आ गया. उनको दोनों में से किसी हिस्से को आप लिफ्टर करके, सो दिस इज बेसिकली लिफ्टरिंग, लिफ्टर करके वापस आए तो आपके पास या आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे या आपको जो है वो सोर्स मिल जाएगा. यहाँ ये EXP एक्स्ट्रा किया हुआ है लॉग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए. ये हम हमेशा नहीं करते. यूजुअली वी जस्ट स्टे इन द लॉग डोमेन एंड वी आर गुड विद दैट. लेकिन आप ये कर सकते हैं अगर करना चाहें.
So on this slide, we see the complete pipeline of everything that we have studied up until now. So you have your time domain signal, जिसके अंदर ये आपका vocal fold से आने वाला यानी source है, excitation जिसको हम कहते हैं, और ये हमारा filter का response H है, so जो हमारा vocal tract के जरिए आ रहा है, और ये दोनों चीज़ें आपस में convolve हो रही हैं. So what you're hearing is as a result of these two things convolving together. इस पूरी की पूरी चीज़ का हमने Fourier transform लिया and we get the signal spectrum. So in the spectrum, we know कि जो चीज़ें, so convolution in time domain is equivalent to multiplication in spectral domain, in frequency domain. So यहाँ ये excitation और source जो हैं ये multiply हुए पे पड़े हुए. Now you take the log of the magnitude of this spectrum. You take a log of the magnitude of this spectrum, and as a result, you get this. ये दोनों की दोनों चीज़ें अब added form में आपके पास आ गई हैं. इस सब कुछ का यानी log of the magnitude of the spectrum का आप inverse Fourier transform लेते हैं and you get your cepstrum. So in your cepstral domain आपके पास ये वाली चीज़ आई है. So this is your cepstrum. ठीक है. So ये आपका Fourier transform of the signal था, ये उसका log था, और उसके बाद ये आपने उस log का inverse Fourier transform ले लिया. So you have your cepstrum. इस सेप्स्ट्रम को अब आप लो पास फिल्टर से गुजारते हैं तो ये मिल जाता है. अगर आप हाई पास फिल्टर से गुजारते हैं तो आपको ये मिल जाता है. यू कुड इवन हैव पास्ड इट थ्रू दिस. सो लोअर हाई पास फिल्टरिंग के बाद, इन अदर वर्ड्स लोअर हाई पास लिफ्टरिंग के बाद, टू बी मोर प्रिसाइज, लोअर हाई पास लिफ्टरिंग के बाद यू गेट आइदर द फॉर्मेंट पार्ट ऑफ इट और द एक्साइटेशन पार्ट ऑफ इट. इस सब कुछ का आपने दोबारा फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया एंड यू गेट योर लॉग स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो यू गेट योर लॉग स्पेक्ट्रम जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं. सो दिस इज द लॉग ऑफ द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द लॉग ऑफ एच एंड दिस इज द लॉग ऑफ ई. सो ये लॉग ऑफ एच जो आ रहा है, जो जो फिल्टर का रिस्पॉन्स का आपके पास आ रहा है, ये आपके पास इस पॉइंट पर आया हुआ है. और ये लॉग ऑफ एक्साइटेशन हाई पास फिल्टर से आया है, ये इस पॉइंट पर आया हुआ है. ठीक है. और इन दोनों को अगर आप वापस लॉग से नॉर्मल डोमेन में लाना चाहते हैं तो यू डू दिस एक्स्ट्रा स्टेप. अदरवाइज यू जस्ट यूज दीज log spectrums and they're good for you. So in the end you get the filter and you get the source as the outcome. So this is the cepstrum जो अब तक हमने इसको देखा है. अब हम ये देखते हैं कि इस cepstrum को अब हम किस तरह से यूज करेंगे एक्चुअली हमारी डिफरेंट इंटरेस्टिंग कामों के लिए. एक एंगल इसका और देखना ज़रूरी है बिफोर वी मूव ऑन, और वो है कि हम सेप्स्ट्रल एनालिसिस को एज डीकॉन्वोल्यूशन देख सकें. कन्वॉल्व हुई चीज़ों को अलग कैसे कर सकते हैं. असल में तो आपने प्रॉब्लम ये सॉल्व किया ना कि आपकी दो चीज़ें जो कन्वॉल्व हुई थी आपने उसको डीकन्वॉल्व कर लिया. If you recall, the speech signal can be modeled as the convolution of glottal source, the vocal tract filter and the radiation filter. ये radiation filter भी था, आपको याद होगा, जो मुंह से जब आवाज़ निकलती है तो इसके अंदर +6 डेसिबल्स पर ऑक्टेव का जो टिल्ट ख़त्म होता है, यानी जो इंक्रीज आता है, वो उसको हम यहाँ पर तीसरा एक अलग चीज़ कह रहे हैं. बिकॉज these signals are convolved, they cannot be easily separated in the time domain. So however we can perform the separation as follows. यहाँ पर एक कन्वीनियंस ये की है कि vocal tract और radiation filter को जोड़कर एक चीज़ बना दी है V dash n. So your overall signal is yn is equal to un, the source, and the V dash n, which is the filter. Taking the Fourier transform you get here. If we now take the log of the magnitude, we obtain this. And इसके अंदर यही बात जो मैंने भी आपको एग्जांपल देकर थोड़ी देर पहले कही थी, which shows that the source and filter are now just added together. So now we can take another Fourier transform, and then we get to the cepstral domain and we can simply separate these things from each other. ठीक है. तो वहां पर जाएंगे और वापस आएंगे और वापस आकर इनमें से किसी एक को रखकर हम वापस आ सकते हैं. I hope everything is now clear to you. ये है जनाब अब अगला बड़ा सवाल कि जब हम लो पास फिल्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने सेप्स्ट्रम बना लिया. उस सेप्स्ट्रम के अंदर आपको पता है नीचे एक काम की चीज़ आ रही है और ये ऊपर एक पीक आ रही है. अब यहाँ नीचे कहाँ पर लो पास फिल्टरिंग करें, कहाँ पर अपना कितना कुछ रखें, यानी कितने कोफिशिएंट रखें, कितने वेट्स रखें इस फाइनल ग्राफ के जो हमें सेप्स्ट्रम के अंदर मिले थे. and there is a very interesting basically direction जो यहाँ से आगे हमारी होगी. आप ये देख सकते हैं कि ये different number of सेप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स रखकर उनको वापस फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर लाए हैं और उनको प्लॉट किया हुआ है. आप देख रहे हैं कि जब हमने 50 प्लॉट किए हैं, if we just take the 50 initial first 50 सेप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स, that is C1 to C50. So आपका जो पूरे का पूरा ये सेप्स्ट्रम आया ना, इस सेप्स्ट्रम का जीरो वाला हटाकर आगे 50 आप उठा लें अगर, और उस 50 को आप प्लॉट करें तो आपके पास ये वाला ग्राफ आता है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको ना थोड़ा थोड़ा सोर्स की चीजें भी नजर आ रही हैं. तो 30 प्लॉट करके देख लें. इन 30 यू सी इट्स मच स्मूदर बट यू स्टिल सी सम इम्पैक्ट फ्रॉम द सोर्स. फॉर k is equal to 20 अब आपको थोड़ा सा अभी भी सोर्स नजर आ रहा है. फॉर्मेट्स तो नजर आ रहे हैं लेकिन सोर्स थोड़ा सा नजर आ रहा है. फॉर k is equal to 10 इट्स नाइस एंड स्मूथ. अब आपको खाली फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं.
Usually, and this is basically based on the experiments that we have done with speech recognition and with various other uses of these capstone coefficients, the number of capstone coefficients that we use in our analysis are 12. इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ आपको नहीं मिलेगा. दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट्स के जो ओवर द इयर्स एक्सपेरिमेंट्स हुए. 12 इज द बेस्ट नंबर दैट हैज बीन फाउंड. सो हम 12 कैप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स, तो आपने सेप्स्ट्रम लिया और सेप्स्ट्रम के शुरू के 12 पकड़ लें, बाकी वेस्ट कर दें. शुरू के जो 12 सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स हैं आपके, ये वो हैं जिनको हम यूज़ किया करते हैं इन आर कैप्स्ट्रल एनालिसिस. तो वो जो MFCC का CC है ना, अब वो आपको समझ आ गया. दीज आर द फर्स्ट 12 कैप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स जो कि हमारे वोकल ट्रैक के फिल्टर को यूज़ करने के लिए. लेट मी जस्ट सी कि मैं स्लाइड में कुछ छोड़ तो नहीं गया. द सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स आर अ वेरी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल एनवेलप. इट ऑल्सो टर्न्स आउट दैट द सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स आर टू अ लार्ज एक्सटेंट अनकोरिलेटेड. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये जो सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स हैं ना, इनकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं है. फॉर द मोस्ट पार्ट दे आर अनकोरिलेटेड. ये हमारी मशीन लर्निंग में बड़ी काम की चीज़ होगी. इसका मतलब ये भी है कि अब इनकी मीन्स और वेरिएंसेस को हम इंडिपेंडेंटली स्टोर कर सकते हैं. वी डोंट नीड टू केयर अबाउट देयर कोवेरिएंस. सो कोवेरिएंस मैट्रिक्स रखने की जरूरत ही नहीं है. दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट अनकोरिलेटेड. इनफैक्ट मैं आपको वो भी नहीं दिखाऊंगा स्लाइड्स, बट यू कैन एक्चुअली प्लॉट वन अगेंस्ट द अदर एंड यू कैन सी वेरी नाइस क्लस्टरिंग अराउंड द डिफरेंट वॉवल साउंड्स एंड डिफरेंट अदर साउंड्स जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं. तो ये बड़े काम की चीज़ हैं ये वाले हमारे सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स, जिनसे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाला करते हैं. For these reasons, सेप्स्ट्रल coefficients are widely used in speech recognition, generally combined with perceptual auditory scale. इसकी बात अभी हम करते हैं कि अभी इस पूरे CC के अंदर MF का नहीं जिक्र आया, मेल फ्रीक्वेंसी का, तो वो एक चीज़ और ऐड होगी और ये कहानी पूरी हो जाएगी. we're almost there. ठीक है, तो ये आपने इस स्लाइड के अंदर जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम हमारे सेप्स्ट्रम के अंदर से फॉर्मेंट्स के ग्राफ को अलग कर सकते हैं. ये फॉर्मेंट्स अलग हुए हैं. ये अब दूसरी चीज़ है जो आपके सेप्स्ट्रम में आपके पास पड़ी हुई थी, और वो चीज़ थी हमारी वॉइसिंग या पिच की इन्फॉर्मेशन. सो द शॉर्ट टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द corresponding spectra for a sequence of analysis windows in a speech signal, 50 millisecond window and 12.5 millisecond shift, ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं. सो ये आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट टाइम लॉग स्पेक्ट्रा, यानी बेसिकली सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है और उसको लॉग किया हुआ है. और ये है शॉर्ट टाइम सेप्स्ट्रा इन्हीं कॉरेस्पॉन्डिंग जगहों का. ये आपकी अपनी बुक से है, रेबनर की बुक से. और यहाँ पर हमें ये मालूम है कि क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास जो फ्रेम्स 1 to 5 हैं, यानी फ्रेम 1 2 3 4 5, यहाँ पर अनवॉइस्ड स्पीच है. जबकि फ्रेम्स 8 to 15 के अंदर वॉइस स्पीच है. और फ्रेम 6 और 7 जो है ना, ये मिक्सचर है वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ पीक जो कि वॉइस्ड सिग्नल के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती है. This is the peak which is coming from your voicing, your pitch. So अब pitch detect करना देखें कितना आसान हो गया. आपने खाली इस जगह को अलग कर लिया and you can just get the pitch from here. ठीक है, इतनी जगह को अलग करके, और भी थोड़ी देर बाद हम जाकर कुछ इसको एक्चुअली कैलकुलेट भी करेंगे कि इससे कैसे निकालते हैं. यू कैन एसेंशली जस्ट गेट इट फ्रॉम हियर कि ये इसकी वैल्यू क्या है अगर मैं इस पिच की वैल्यू निकालना चाहूँ जो यहाँ पर आ रही है. ठीक है, सो दीज डिफरेंसेस आर परहैप्स मोर अपीरेंट इन द सेप्स्ट्रम. वो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं डिफरेंसेस. आप देख सकते हैं कि ये बड़ा रेगुलर सा हो गया इसकी रैपिड मूवमेंट, जबकि यहाँ नॉइजी सी थी. लेकिन सेप्स्ट्रम में वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे हैं. एंड यू सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीक इन द थ्री in the 20 मिलीसेकंड रेंज. सो ये आपके पास जो है ना इस रेंज के अंदर 3 to 20 मिलीसेकंड रेंज के अंदर आपके पास जो है वो आपको ये स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है. सो ये 3 to 20 मिलीसेकंड रेंज बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस हिस्से के अंदर पीक फाइंड करें, कहाँ से कहाँ तक आपने पीक देखी है. सो पीक के लिए भी अगर हम इस हिस्से को शामिल कर लेते तो ये पीक ना मिलती. तो आपने शुरू के कैप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स को फिल्टर आउट कर दिया, और जो बच गया, यानी आप इवन 3 मिलीसेकंड के ऊपर भी अगर इसको लिफ्टर कर देते और इससे ऊपर का बैंड पास होने देते और नीचे का बैंड रिमूव कर देते, तो इसके अंदर अगर आप पीक फाइंड करते तो आपको यहीं पर मिलती जहां पर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, विच इज़ अ पीक अराउंड कोई ये 10 और 15 के बीच में, तो कोई 12 मिलीसेकंड के अराउंड जो है पोजीशन के ऊपर हमें ये मिल रही है. हाउएवर एक बात और याद रहे, लैक ऑफ अ पीक डज नॉट मीन कि वॉइसिंग नहीं है. उसमें कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं. सो पीक का मिल जाना वॉइसिंग का इंडिकेटर है. पीक का ना मिलना इस हाई जोन के अंदर ये भी हो सकता है किसी और वजह से वो पीक जो है वो सप्रेस हो गई हो, जो कि रीजंस आप थ्रू आउट देखते आए हैं. तो कभी कभी ऐसा होगा वर्ड के शुरू में, वर्ड के आखिर में हमें पिच नहीं मिल रही होगी, और विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल. अच्छा जनाब, अब एक एक्चुअल
कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर अब आपको एक और चीज़ भी नजर आएगी कि आपका सेप्स्ट्रम और इनफैक्ट आपके जितने भी स्पेक्ट्रम वगैरह ये सारे के सारे जो थे ना, ये मिरर्ड ग्राफ्स होते हैं, इनकी दो दो साइड्स होती हैं और इसमें से आधा यूजुअली हमें रखना पड़ता है। यहाँ आपको पूरा नजर आ रहा है और आप जब अपनी असाइनमेंट के अंदर इस काम को करेंगे तो आपको ये खुद इनका आधा हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो है वो एक सिग्नल है जिसकी आपने हेमिंग विंडो लेकर आपने इसको विंडो कर दिया। विंडो करने के बाद आपने इसका लॉग स्पेक्ट्रम निकाला है। सो ये स्पेक्ट्रम निकाल के उसका लॉग ले लिया। उसके बाद आपने इसका सेप्स्ट्रम निकाला है। सेप्स्ट्रम के बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये दरमियान का हिस्सा रिमूव कर दिया। अब देखिए गौर कीजिए ज़रा, इस पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये किस किस्म का स्पेक्ट्रम है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। ये जो ग्राफ है ना, ये इस पॉइंट के अराउंड मिरर हुआ है। तो हम खाली इस हिस्से को देख लेते हैं। आज तक जो आपको दिखाते रहे हैं ना, वो शुरू का आधा हिस्सा दिखाते रहे। इसी तरह से जो इसका सेप्स्ट्रम भी है ना, इसका जो हिस्सा हम आपको दिखाते रहे हैं आज तक, आज के लेक्चर के अंदर, वो बस यहाँ तक का है। ठीक है, तो इसको अब आप रहने दें, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये वही हिस्सा जो है वो रिपीट हुआ है। इसी तरह से इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें, इस हिस्से को ख़त्म कर दें, शुरू के हिस्से को रख लें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम डोमेन सिग्नल का जब आपने लॉग स्पेक्ट्रम लिया है तो यू सी द क्विकली मूविंग पार्ट्स एंड यू सी द स्लोली मूविंग पार्ट्स। तो आपको फॉर्मेट्स भी नजर आ रहे हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स भी नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको जो है वो फॉर्मेट्स की वजह से ये नजर आ रहा है और वॉइसिंग की वजह से ये पीक नजर आ रही है। दोनों चीजें नजर आ रही हैं। आपने इसके सेंटर के हिस्से को रिमूव कर दिया और दोनों साइड की सिर्फ हिस्से रख लिए, ये दोनों को भी छोड़ दे, तो बस खाली शुरू का ये हिस्सा रख लिया, लो पास फिल्टर से गुजार दिया। जो चीज़ आपके पास बची है इसको आप वापस लेकर आए एक और दफ़ा इसका DFT लेकर, एंड यू सी कि आपके जो है वो फॉर्मेट्स रिजॉल्व हो गए। और इन्होंने अब इस चीज़ को जो है वो उस हाफ को यहाँ पर प्लॉट किया है और ये जो डार्क लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये प्लॉट है एसेंशली जो आपको मिला है ये पूरा प्रोसेस करने के बाद। यहाँ पर अब देख लेते हैं दोनों चीज़ों को। अगर हम इसका सोर्स निकालते या फिल्टर निकालते तो क्या होता है। अभी तो मैंने आपको खाली ग्राफ सिखाया है ना कि ग्राफ में हो क्या रहा है। So the original waveform is periodic. You can clearly see there is a period. ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़. So there is a period और ये कोई तकरीबन कोई 10 मिलीसेकंड का पीरियड है. The source is manifested as a spike at pitch period duration. वो आपको नज़र आ रहा है कि ये स्पाइक आपको नज़र आ रही है. In panel 3 the spike is clearly visible at n is equal to 221. ये कोई 221 के ऊपर जाकर आपको ये पीक नज़र आ रही है. अब मैं अगर देखना चाहूँ इस पीक को एक्चुअली मैं एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, ये ज़रा कैलकुलेशन एक नज़र देख लीजिए ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज है, विच मीन द सैम्पलिंग ड्यूरेशन, जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो 1/20,000 विच इज़ 0.00005. इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 221, ये जो 221 आया, मल्टीप्लाइड बाय दिस सैम्पलिंग इंटरवल विच कम्स आउट टू बी 0.01105. इसको इन्वर्ट करेंगे तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 90.49 हर्ट्ज। ठीक है, और ये चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि यही फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से भी निकाल सकते थे अगर हम कोई ऑटो कोरिलेशन मेथड से आते। 10 मिलीसेकंड का तकरीबन डिफरेंस था, तो तकरीबन हमें उतनी ही फ्रीक्वेंसी तक हम यहाँ से पहुँचते। सो द कैप्स्ट्रल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस साउंड्स। आप खाली इस जगह से ऊपर सब कुछ रख लेते और ये जगह आप रिमूव कर देते तो आपको जो है वो ये मिल जाता, और ऑब्वियसली हाफ तक आपने जाना है। ठीक है, तो आपको ये वाली पीक मिल जाती। एंड ऑल्सो टू एस्टिमेट वेदर द साउंड इज वॉइस्ड, अगर नो स्पाइक है और या फिर अनवॉइस्ड। और जैसे कि हमने कहा कि हाँ, कभी कभी गलती ज़रूर होगी कि पीक नहीं होगी और वो किसी और वजह से नहीं होगी। आमतौर पर जब पीक नहीं होगी तो वो अनवॉइस्ड होगा। एंड देन अब हम इसमें से ही अगर फॉर्मेट्स निकालना चाहें तो वो हम ऑलरेडी जानते हैं। पैनल 4 और द वेवफॉर्म्स, ऑल द वेवफॉर्म इंक्लूडिंग द सोर्स इज अटेन्यूएटेड टू 0, रिमूविंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वोकल ट्रैक्ट सोर्स को आपने इसमें से रिमूव कर दिया है। और रिमूव करने के बाद अब आपने इसको वापस लेकर आए हैं एक और दफ़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर, और इसके नतीजे में जब आपने इसको प्लॉट किया है तो यू कैन सी कि आपको आपके फॉर्मेट्स मिल गए हैं। ठीक है जनाब, सो आई होप दिस इज़ नाउ प्रोसीजरली क्लियर और आप ये अब काम को खुद से कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट के अंदर जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। अब रह गया आखिरी वाला काम। एक चीज़ हम इसमें और बस करते हैं इन कैप्सूल कोफिशिएंट्स को फर्दर इंप्रूव करने के लिए, और वो ये करते हैं कि हमें मालूम है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो हमारी परसेप्शन है फ्रीक्वेंसी की, वो लीनियर नहीं है। हम डिफरेंट, वो नोटिसेबल डिफरेंस का आपको याद होगा ना कि हम 1000 हर्ट्ज से नीचे नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको बड़ा क्लियरली अलग अलग कर सकते हैं, वेयर एज 1000 हर्ट्ज से ऊपर हमारा जो है वो, अब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को आपस में मिक्स करने लगते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए अच्छी तरह हमने बहुत डिटेल में जो है वो मेल फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था। हमने ये देखा था कि मेल स्केल होता क्या है, ये वाला फॉर्मूला भी हमने अच्छी तरह से समझा था। ये भी देखा था कि इसके रेफरेंस के लिए हम 1 किलोहर्ट्ज़ एट 40 डेसिबल्स को यूज़ करते हैं। सो यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। तो अब हमारी पाइपलाइन में सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई, सिग्नल लिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, और फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद लॉग करने से पहले उसको मेल पर ले गए, यानी इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए उसे मेल में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग कि हम ये फिल्टर बैंक्स यूज़ कर रहे हैं। 1000 हर्ट्ज तक ये लीनियर है फिल्टर बैंक्स, और 1000 हर्ट्ज से ऊपर इनका मैग्नीट्यूड भी गिरता जा रहा है और इनका साइज भी बड़ा होता जा रहा है, मीनिंग कि ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज अब एक फ्रीक्वेंसी पे मैप हो रही हैं। तो आप मेल को अक्सर जो है वो इस तरह से भी बना हुआ देखेंगे। ये मैंने उस वक्त भी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली बात की थी जब मैं आपको मेल पढ़ा रहा था। मैं इस पर मजीद बात नहीं करूँगा क्योंकि मेल में आपको बहुत तफसील से पढ़ा कर आ चुका हूँ, जहाँ पे हमने डेसिबल्स की बात भी की थी और उसके बाद मेल्स की बात भी की थी। हमने ये सारी की सारी जो मैपिंग्स थी ऑफ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये परसेप्चुअल स्केल्स के ऊपर, ये हमने उस पर तफसील से पढ़ी थी। एक और चीज़ यहाँ पर सुन लीजिए, ये आपको कहीं आगे जाकर कंफ्यूज ना करे कि जब भी आप कभी पढ़ेंगे एक्चुअली सेप्स्ट्रम के बारे में, तो आप ये देखेंगे कि आईडीएफटी के बजाय डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाता है। अब ये क्या भला है, ये कहाँ से आ गया? अब क्या ये हम आपको पूरी की पूरी वीडियो दिखाने लगेंगे इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा दिया है वो काफ़ी है। हम सिर्फ थोड़ा सा आपको फ़र्क बता देते हैं कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में और डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वो क्या सिमिलैरिटी है और ये क्या डिफरेंसेस हैं। सो डीसीटी टर्न्स आउट टू बी क्लोजली रिलेटेड टू this other transform. So the KL transform is the basis for PCA technique that can be used to find orthogonal uncorrelated projections of high dimensional data. ये जब आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर PCA की टेक्निक है। हमने अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम हम कवर नहीं कर सके थे अपने मशीन लर्निंग के कोर्स में, लेकिन PCA is one of the techniques which is used to reduce the dimensionality of the data, और ये हमारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, लेकिन इसकी बात करने का खैर फिलहाल मौका नहीं है हमारे पास। So as a result DCT tends to decorrelate the Mel scale frequency log energies. अच्छा, मैं अगर आपको इसका फॉर्मूला दिखाऊं ना, तो आपको एकदम से इत्मीनान हो जाना चाहिए। देखिए, ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, जाना पहचाना। हर एक सिग्नल के साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को प्रोब करके देख रहे हैं कि ये इसमें कितनी मौजूद है। फ़र्क यहाँ डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में सिर्फ इतना है कि बजाय रोटेटिंग सर्कल्स के मैं डिफरेंट कोसाइंस को इसके साथ प्रोब करके देख रहा हूँ कि इसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है। अब आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अब पूरी कहानी ईजी हो जानी चाहिए, क्योंकि सर्कल्स के अंदर कोसाइन भी था और साइन भी था। मैंने उसका साइन छोड़ दिया, खाली कोसाइन को इसके साथ जोड़कर देख रहा हूँ, प्रोब कर रहा हूँ कोसाइंस की मदद से कि कौन सा कोसाइन मौजूद है कौन सा नहीं। सो इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला दिस शुड बी लाइक सुपर सिंपल टू यू। बाय द वे, ये विंडोड फॉर्मूलाज दोनों केसेस में लिखे हुए हैं। सो अंडर सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशंस भी आप खुद बना सकते हैं अगर चाहें, द डीएफटी एंड द डीसीटी आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। ये DCT2 है बाय द वे जिसका फॉर्मूला है। For our purposes, you can think of the DCT as a real version of the DFT. So इसका कोई imaginary part नहीं है. That also has better energy compaction properties than the discrete Fourier transform. तो बस ये इतना याद रहे, DCT ले रहे हैं ना, तो आप ये समझ लें कि जैसे आप IDFT ही ले रहे हैं, बस उसके रियल पार्ट में इंटरेस्टेड हैं। ये है जनाब पूरा सफ़र। मैंने कहा था ना इस लेक्चर में मैं बार बार इन बातों को दोहराऊंगा, तो अब ये दोबारा दोहराने लगा हूँ। सो ये सेप्स्ट्रम का पूरा सफ़र है। ये आपका सिग्नल है, ये सिग्नल को आपने विंडो किया है, ये विंडो करने के बाद लॉग किया है, और लॉग करने के बाद आपने इसका स्पेक्ट्रम ले लिया है। सो दिस इज अ लॉग स्पेक्ट्रम। लॉग स्पेक्ट्रम के बाद यहाँ कहीं बीच में मेल करते हैं, और उसके बाद ये आपका सेप्स्ट्रम आ गया। सेप्स्ट्रम के अंदर ये आपके फिल्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपके सोर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये हमारा पूरे का पूरा पाथवे था। इसमें एक आध छोटी छोटी चीज़ रह गई है जिसकी मैं बात अब करता हूँ। सो दिस इज़ बाय द वे फ्रॉम योर बुक। सो दिस इज़ योर स्पीच सिग्नल। एक काम हम इसमें और करते हैं अक्सर, अब यहाँ से आगे ना बहुत सी इस तरह की चीज़ें देखेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने के लिए छोटे छोटे और पाइपलाइन में स्टेजेस डाली हुई होती हैं। प्री एम्फेसिस का एक काम इसके अंदर हम करते हैं, टिल्ट को थोड़ा और कम करने के लिए। देन यू विंडो इट। अब यहाँ जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये हम एक 39 डिमेंशनल वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको हम MFCCs कहते हैं, मेल फ्रीक्वेंसी कैप्सूल कोफिशिएंट्स। तो अब मैं आपको MFCCs का पाथवे पूरे का पूरा एक दफ़ा दिखाऊंगा और फिर एक दफ़ा ये कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। सो यू टेक अ विंडो and then you calculate the discrete Fourier transform, your MEL filter bank, your log, your IDFT, and you get the first 12 कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और उसके बाद हम उसके ना उन 12 कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स की जो रेट ऑफ चेंज है और रेट ऑफ चेंज है, ये दोनों चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे। सो वी गोना गेट 12
MFCCs, the first 12 coefficients, and then the rate of change of those coefficients, यानी वो उनका difference उनके पिछले वालों से, and the rate of change, यानी उनकी velocity और acceleration. ये क्यों हम देख रहे हैं? आपको याद होगा कि जब मैंने आपको स्पेक्ट्रोग्राम रीडिंग पढ़ाई थी, अब देखिए सारी चीज़ें कन्वर्ज होंगी. उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी कभी फॉर्मेट्स का तेज़ी से ऊपर जाना या स्लोली ऊपर जाना, और तेज़ी से नीचे आना या स्लोली नीचे आना, डिफरेंट साउंड्स के बीच में डिफरेंस करता है. तो अब तेज़ी से ऊपर जाने को, ऊपर जाने और नीचे जाना तो वैसे ही करता है साउंड्स के बीच में फ़र्क, और तेज़ी और स्लोली जाना और ज़्यादा करता है. तो अब ऊपर जाना नीचे जाना को पकड़ेगा हमारा डेल्टास, यानी दी रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज 12 MFCCs. एंड जो तेजी से ऊपर नीचे जाने को पकड़ेगा वो एक्सेलरेशन पकड़ेगा. सो हाउ रैपिड वाज द बेसिकली दी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो आपने यहाँ पर लिया है इसका, सो वो आपको निकाल कर ये देगा कि हमें कितनी तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं और कितनी तेज़ी से हम नीचे आ रहे हैं. ठीक है, ये कैलकुलेशन की तरफ अभी हमने बढ़ना है. और एक यहाँ पर इसमें चीज़ और ऐड की जाती है कि हर फ्रेम जो आपकी हर विंडो होती है उसकी एनर्जी भी हम कैलकुलेट करते हैं और वो इसके साथ स्टोर कर दिया करते हैं. तो अब ये ज़रा इस सफ़र को एक दफ़ा क्विकली देखते हैं. इसमें कोई नई इतनी बातें नहीं होंगी, लेकिन मैं आखिर में आपको सिर्फ ये एक दफ़ा निकाल कर दिखा दूंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं. सो now let's go about it step by step. All right जी, step 1 मैं pre-emphasis की बात बाद में करता हूँ. So step 1, you take your signal, this is your time domain signal, and you use a sliding window जो कि हमें आती है. ये फ्रेम शिफ्ट है कि दो फ्रेम्स के बीच में आप कितना विंडो को आगे मूव करते हैं, और ये फ्रेम साइज है 25 मिली सेकेंड का हम फ्रेम साइज यूज़ कर रहे हैं, उसको हर दफ़ा 10-10 मिली सेकेंड आगे मूव कर रहे हैं. इससे आपने अपने सिग्नल को विंडो करते चले गए. हर विंडो को आप या तो रेक्टेंगुलर विंडो से कर सकते थे या आप उसको हैमिंग विंडो से कर सकते थे. जैसा कि हमें मालूम है हम फ्रीक्वेंसी वाले कामों में हैमिंग विंडो प्रेफर करते हैं. सो यू जस्ट फिल्टर योर सिग्नल. यहाँ तो आपको रेक्टेंगुलर से नज़र आ रहा है, लेकिन हैमिंग विंडो से हम इसको ब्रेक करते चले जाते हैं और उसके फ्रेम्स बनाते चले जाते हैं. अब हर फ्रेम के साथ हमने क्या करना है, हर फ्रेम का जाकर हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना है. सो यू टेक योर फ्रेम एंड यू टेक अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इट. ठीक है, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सीधा करने के लिए ना हम एक प्री एम्फेसिस यूज करते हैं. सो जस्ट टू स्ट्रेटन इट आउट अ लिटिल बिट, टिल्ट को कम करने के लिए हम प्री एम्फेसिस करते हैं. यूजुअली दिस प्री एम्फेसिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये हम सबसे पहले एक दफा विंडोइंग करके ना पूरे सिग्नल का प्री एम्फेसिस कर देते हैं. तो ये उस पॉइंट पे होता है. मैंने यहाँ पर आपको इसलिए दिखाया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि प्री एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं. बट इन द एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर पाइपलाइन यू बेसिकली रन अ विंडो एंड यू प्री एम्फेसाइज द होल सिग्नल. उसकी जो जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको थोड़े से मैग्नीट्यूड को ऊपर उठा दिया जाता है. ठीक है, इससे बाद में जो होने वाला लॉग है वो फर्दर और उसे उठा देगा और आपका टिल्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा. All right, now you pass it through your MEL filter banks. So आपने basically हर frequency को उठाकर MEL frequencies के ऊपर के through map कर देना है, and you get your basically एक array जो आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की पड़ी हुई है, उस फोरियर ट्रांसफॉर्म की array से आपने एक और array बना ली है जो कि अब MEL frequency स्पेक्ट्रम आपके पास जिसमें पड़ा हुआ आ गया. ठीक है, ये चीज़ आपको आती है, आपने इससे पहले की हुई भी है. All right. So now you basically take your cepstrum. तो अब आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने अपना जो सिग्नल जिसको मेल फ्रीक्वेंसी से गुजार कर लाए थे उस सिग्नल को उठाकर आपने एक दफ़ा दोबारा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, लॉग लिया, सॉरी, उसका लॉग लेने के बाद आपने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और आपके पास सेप्स्ट्रम आ गया. Now that you have your cepstrum, now we calculate from the cepstrum the sepstral coefficients. अच्छा, अब ये ज़रा एक दफ़ा इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए. अब हर फ्रेम के लिए आपके पास जो है वो सेप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं. आपने उसमें से पहले 12 उठा लिए. सो अब क्या क्या कुछ है आपके पास, 12 कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स. उन कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट्स की सक्सेसिव टाइम विंडोज के अंदर जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो यानी द डेल्टास. Then 12 double deltas, which is the acceleration of the sepstral coefficients, one energy, one delta energy and one double delta energy coefficient. ठीक है, अब जरा देख लीजिए कि किस तरह से निकल रहे हैं. So these are basically your capsule coefficients. C1 से लेकर C12 तक आपके capsule coefficients हैं. ये फर्ज करें, ये मैं एनर्जी भी रख देता हूँ इसकी. नीचे जो मैंने सबस्क्रिप्ट्स लिखी हुई है ना, ये इसका टाइम है. So this is at time 0, energy at time 1, energy at time t minus 2, energy at time t minus 1, energy at time t. मैं बेसिकली कैलकुलेशन के लिए ये t minus 1, t minus 2 और ये सब लिखे हैं. So basically this is your time axis. दिस इज योर टाइम एक्सिस जिसके ऊपर आपके सारे पड़े हुए. तो ये आपकी हर विंडो में से जो आपकी फर्स्ट फ्रेम था उससे ये आया 25 मिली सेकेंड के, अगले फ्रेम से ये आया, अगले फ्रेम से ये आया. सो दीज आर द डिफरेंट फ्रेम्स जिससे आपका निकल रहा है और ये टाइम बेसिकली उस फ्रेम का टाइम शो कर रहा है. फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम. सो दिस इज बेसिकली एसेंशियली जिसको मैं टाइम कह रहा हूँ, ये आपका फ्रेम नंबर है. सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, दिस इज द टी माइनस सेकंड फ्रेम, टी माइनस फर्स्ट फ्रेम एंड टीएथ फ्रेम एंड सो ऑन. ठीक है,
तो आपके पास हर फ्रेम के अंदर 12-12 कैप्सूल कॉफिशेंट्स हैं। उसके बाद आपने डेल्टास निकालना शुरू किए। वो कैसे निकाले? इस फ्रेम में जो मेरा C1t है, इससे मैंने C1t माइनस 1 को माइनस कर दिया, दैट गिव्स मी डेल्टा C1t। ठीक है, मेरे फ्रेम का जो एक पर्टिकुलर कॉफिशेंट है उसका उसका डिफरेंस मेरे पिछले वाले फ्रेम के सेम कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशेंट के साथ। इसी तरह से मैं एनर्जी के भी डेल्टास निकाल लूंगा। सो माय ET क्या होगा? सो ET किस तरह से निकलेगा? ET वुड बी सिंपली ET, इस केस में मैं सो ET minus ET minus 1. So this is delta ET, sorry. Delta ET is ET minus ET minus 1. ये मेरा डेल्टा ET आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट T के ऊपर खड़े होकर अभी की एनर्जी माइनस पिछली वाली एनर्जी, ये मेरे पास 12 डेल्टाज आ गए। सॉरी 13, एनर्जी भी मिला लें तो 13 डेल्टाज आ गए। सो 13 कॉफिशेंट्स यानी 12 कॉफिशेंट्स, एक एनर्जी, उसके बाद 13 डेल्टाज यानी 12 कॉफिशेंट्स के डेल्टाज और एक एनर्जी के डेल्टा, एंड इसी तरह 13 डबल डेल्टाज। डबल डेल्टा किस तरह से निकल रहे हैं? सो आई जस्ट सब्ट्रैक्ट माय करंट डेल्टा फ्रॉम द प्रीवियस डेल्टा, यानी रेट अभी जो था और पिछला जो था, सो रेट ऑफ चेंज माइनस पिछला वाला रेट ऑफ चेंज गिव्स मी द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, सो डेल्टा C1t माइनस डेल्टा C1t माइनस 1, डेल्टा C12t माइनस डेल्टा C12t minus 1। इसी तरह से जी डबल डेल्टा ऑफ एनर्जी would be equal to delta E of t minus delta E of t minus 1। ठीक हो गया जी। तो ये this is how you basically calculate this। If you sum these up, these are 13 plus 13 plus 13, so these are your 39 MFCC features। So this is your 39 dimensional मेल फ्रीक्वेंसी कैप्सूल कोफिशिएंट्स। तो ये अब आपको वेक्टर मिल गया फाइनली, जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, और ये हर फ्रेम का आपके पास अलग से निकलता है। एक दफ़ा इस पूरे प्रोसीजर को हम एक और अंदाज से भी देखेंगे फाइनली, ताकि जो है कोई अगर कंफ्यूजन है तो आपके जहनों से वो निकल जाए। ये बेसिकली स्लाइड्स जो हैं मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं इनकी, बिकॉज ही हैज़ दीज रियली अमेजिंग विजुअल्स। सो दिस इज़ बेसिकली योर टाइम डोमेन सिग्नल। इसको आपने विंडो किया तो ये आपके पास विंडोज़ निकल आई हैं सारी की सारी टाइम डोमेन सिग्नल की। इनको आपने FFT किया तो आपके पास स्पेक्ट्रम निकल आए। इसी स्पेक्ट्रम को जब आप प्लॉट करते हैं ना, तो इन्हीं प्लॉट करने से ये बेसिकली आपके हर स्पेक्ट्रम के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई होती है। इसको आप रोटेट करके जब प्लॉट कर देते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रोग्राम निकल आता है। तो दिस इज़ योर स्पेक्ट्रोग्राम एसेंशली। ठीक है, सो और ये स्पेक्ट्रोग्राम लॉगरिदमिक भी हो सकता है। ये स्पेक्ट्रोग्राम जो है वो मेल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरह का स्पेक्ट्रोग्राम बन सकता है। सो नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू बेसिकली मैप एवरीथिंग टुगेदर एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। एंड देन अगेन अगर इसी को मेल फिल्टर से गुजार कर और सेप्टर एनालिसिस कर लें, तो अब हर जो बेसिकली विंडो है उसके क्रॉस मेरे पास जो है वो उसके एक ये सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स निकल आएंगे। सो दीज आर बेसिकली माय सेप्स्ट्रल कॉफिशिएंट्स, माय C1 C2 अप टू C12, और मेरी एनर्जी इसी तरह से जो है वो डेल्टा C1 से डेल्टा C12, डेल्टा एनर्जी, डबल डेल्टा C1 से डबल डेल्टा C12, एंड देन डबल डेल्टा एनर्जी। ये मेरे पूरी की पूरी फाइल के मेल frequency capsule coefficients निकल आएंगे। Essentially now this has all of the information of the formats that I require to perform speech processing and to perform speech recognition and other interesting things। ये हमारे पास पूरे का पूरा एक फाइल का सेप्स्ट्रल वेक्टर्स आ गए हैं, जिसके अंदर अब उसकी जिस तरह से अभी हमने इसे फिल्टर किया है, हमने खाली लोअर हिस्सा रखा है, तो हमने खाली फॉर्मेट्स की इंफॉर्मेशन रखी है। सो दिस इज नाउ स्पेक्ट्रम के अंदर, या जो स्पेक्ट्रोग्राम था उसके अंदर तो सब कुछ मिक्स पड़ा हुआ था ना, उसके अंदर सोर्स भी था और फिल्टर भी था। जबकि सेप्स्ट्रल वेक्टर्स के अंदर अब हमने या सोर्स रखा हुआ है या फिल्टर रखा हुआ है। तो अब हम अपनी मर्जी से दोनों में से किसी एक चीज़ को यहाँ बचा कर रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं इससे आगे की जितनी भी स्पीच प्रोसेसिंग के टास्क हैं उसके अंदर। All right, Janab. So we have made it to the end. This was all about Cepstrum, and this was all about your mel frequency Cepstral coefficients। अब यहाँ पर आपका जितनी भी चीज़ें इस पाइपलाइन के अंदर हुई हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा बदल के इसके बहुत से वेरिएंट्स बन जाते हैं। सो हम एक ट्रांसफॉर्म हटा के कोई दूसरा ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, तो ये थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ बन जाएगी। इसके अंदर हम मेल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इससे इसके दो फ्लेवर्स बन जाएंगे, और इस तरह के आप जो है वो फीचर्स बहुत से पढ़ेंगे। In the end, what's important is कि this gives you really nice and compact uncorrelated, जिसमें फीचर की जो dimensions हैं वो uncorrelated हैं, uncorrelated dimensions of these features। So you get these feature vectors,
and now these feature vectors can essentially be used for doing your speech recognition, for doing other forms of interesting speech processing tasks. So for example, जो मैंने आपको DTW करवाया है, जैसा कि आप अपनी असाइनमेंट के अंदर भी करेंगे, वो DTW आपने टाइम डोमेन के ऊपर लगाया था, और मैंने कहा था कि ये चीज़ आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो लगा सकते हैं इवन स्पेक्ट्रल डोमेन के ऊपर भी। तो वो एक था कि स्पेक्ट्रोग्राम पे लगाते, एक है कि आप उसे MFCCs के ऊपर लगाएं। सो यू कैन बेसिकली अप्लाई इट ऑन योर MFCCs एज वेल, कि MFCC के वेक्टर के ऊपर आप जो है वो यही सेम काम करें और वहाँ पर स्पीच रिकग्निशन के लिए इस चीज़ को यूज़ करें। सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट विल बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड। अब हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां से विल स्टार्ट आवर जर्नी इन द मशीन लर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच प्रोसेसिंग, कि अब ये फीचर्स तो आ गए, अब इन फीचर्स को यूज़ कैसे करना है, और इससे फाइनली अब वो एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकग्निशन और कीवर्ड स्पॉटिंग वगैरह वगैरह किस तरह से करनी है। तो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम अबाउट दैट न्यू जर्नी। सो इंशाल्लाह विल बी बिगिनिंग दैट सून। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।